Hello everyone, welcome to the Geo Ecologist. I am Dr. Krishnanand and in this video we'll be learning about how to understand and crack this examination in geography for assistant professorship. So if you are an aspirant for assistant professorship for any state exam or central university in India, this video is for you. So मैं इस वीडियो को कोशिश करूँगा bilingual रखने की so that all of you can understand. So watch the video till the end क्योंकि ये वीडियो बहुत important होने वाला है सारे नए एस्पिरेंट्स के लिए जो लोग अपना करियर ज्योग्राफी में बनाना चाहते हैं. So if you really want to become assistant professor, remember this video is going to be a foundation for you and then you can take it how to prepare, and remember that details of my course is also given in the same video and also in the link in description which you can check later as well. So now let's understand the strategy for preparation for this examination. Alright, so आइए देखते हैं कि क्या है ये path, how to actually look into it and what are the strategies for this path to assistant professor exam in geography in India. So first thing is academic qualification. So your bachelor's in geography, master's, MA or MSc in geography, NET JRF qualification is something which is the academic qualification everywhere. It is required, it's mandatory. Then further you will see that doctoral research. If you have finished it, very good. If you have not enrolled, do enroll at least because they would love to see that somebody has enrolled into research and that's how you will be considered for that particular examination. At least at the interview level, they'll consider more those people, they'll give preference to those people who will have a PhD. So remember, if you don't have a PhD, you must get enrolled in PhD at least while you're attempting for this examination. Also, requirement is publications, then you have participation in conference and workshops. So these are some things which are important and essential. Then you look into academic experience. If you have any teaching experience as guest or temporary teaching position, if you have done some teaching assistantship, some internship, some mentorship and curriculum design, it's preferable. Remember, academic qualification is the prime, the essential criteria. But then other criteria that you observe here is desirable criteria. तो दोनों criteria fulfill होना है, ये ध्यान रखना है. आपका कुछ scholarly contribution वो ढूंढने की कोशिश करेंगे. Book chapters हो, articles हो, projects हो, कोई international national collaboration में आपने काम किया हो, कोई grant मिला हो, कोई research fellowship लिया हो पहले, और इसीलिए JRF वालों को बहुत प्रेफरेंस मिलता है. कई बार ये चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपको कोई और इंस्टीट्यूशन से कोई रिसर्च ग्रांट मिल रहा हो तो आप उसको ज़रूर लें, उस पर काम ज़रूर करें या कोई असिस्टेंटशिप ज़रूर करें. किसी और के काम में असिस्टेंस करना भी एक्सपीरियंस होगा. उन सबके सर्टिफिकेट्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं व्हेन यू आर गोइंग फॉर एक्चुअली इंटरव्यू फॉर दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स. और फर्दर आप देखेंगे कि इनके एप्लीकेशंस आपको ठीक से फिल करने हैं और कई जगह पे आपको इंटरव्यू होता है और साथ में डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर देना भी बोला जाता है. तो आप जरूर प्रिपेयर्ड रहिए कि अगर आपको कहा जाए कि कोई टॉपिक को पढ़ा के बताइए तो आप कैसे पढ़ाओगे वहां पे. तो ये चीज की तैयारी आपको ध्यान रखना है. अब बात करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि इंडिया में जो एग्जाम्स हैं ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है, कैसा फॉर्मेट है और कॉमनैलिटी क्या है, कॉमन थीम क्या है. तो आप देखेंगे कॉमन थीम आपको यूजीसी नेट का जो सिलेबस है ना पेपर 2 ज्योग्राफी का, वो एक कॉमन थीम मिलेगा. मोर और लेस इन सारे एग्जाम में आपको यूजीसी नेट का जो 10 यूनिट का पूरा सिलेबस है उसी को कवर करना है. कहीं पे एमसीक्यू टेस्ट है, कहीं डिस्क्रिप्टिव है, कहीं शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स है. तो लार्जली आप देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और आपका की होने वाला है जो कंसिस्टेंसी है यहाँ पे कि आपने अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशंस बिल्ड किया है, दैट्स गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन. नाउ लेट्स डू सम ओवरव्यू एनालिसिस ऑफ कोर ज्योग्राफिकल डोमेन्स. तो अगर आप ये एग्जाम दे रहे हैं तो कोर ज्योग्राफिकल डोमेन्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. फाउंडेशन पिलर्स शुड बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ तो इसमें पहला सब्जेक्ट है जियोमॉर्फोलॉजी, अर्थ सिस्टम साइंस, प्रोसेसेस, लैंडफॉर्म्स, इन सब की जानकारी अच्छी होनी चाहिए. क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट चेंज एंड एस्पेक्ट उससे रिलेटेड उसके एप्लीकेशंस आपको पता होने चाहिए. ओशनोग्राफी इज एज इंपॉर्टेंट. फिर आता है ह्यूमन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स जहां पे पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, कल्चर एंड अदर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी आज के सिनेरियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और फिर इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो हम बोलते हैं, उसका डेप्थ आपको फिजिकल एंड ह्यूमन में
पता होना चाहिए। उसके अलावा मॉडल्स, थियरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। और उसका एप्लीकेटिव टूल जो है ज्योग्राफी में, मतलब कार्टोग्राफी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, इन सब से भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है। रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक कोर थीम हमेशा से रहा है। तो ये सारा का सारा मेजर थीम्स है जिस पे आपको कमांड करना है इस एग्जामिनेशन के लिए। और एमसीक्यू एग्जाम स्ट्रैटेजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने कैसा पढ़ाई किया है और कितना प्रिसाइजली माइन्यूटली चीजों को ऑब्जर्व किया है। तो आपको इसके लिए डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, एलिमिनेशन टेक्निक्स को डेवलप करना है, शार्प करना है, फोकस रहना है फैक्ट एंड फिगर्स वाले इंफॉर्मेशन पे, बुक्स एंड ऑथर्स वाले इंफॉर्मेशन पे। और मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं समरी दे दूंगा पूरी ज्योग्राफी में जितने बुक्स हैं और उनके कौन ऑथर्स हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इफ यू वांट दिस वीडियो, सो आई विल क्रिएट अनदर वीडियो अलग से। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जरूर देखिए, कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से रिपीट होके आते हैं, तो वो आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या है। तो सबसे पहला चीज होगा उसमें जो आपको डेप्थ चाहिए और क्लैरिटी चाहिए। अगर आपके पास थोड़ी सी भी कमजोरी आपके ग्रेजुएशन में रह गई या मास्टर्स में रह गई, तो इस एग्जामिनेशन में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो अगर आपको सब्जेक्ट मैटर ढंग से पता है तो आप उसको आंसर लिख के 200, 300, 500 वर्ड्स में प्रैक्टिस जरूर करिए। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चीज़ों को लिखिए कि इंट्रोडक्शन में कैसे लिखेंगे किसी चीज़ के बारे में, कौन सा डायग्राम बनाएंगे, कौन सा मैप बनाएंगे, किस तरीके से हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे कंक्लूडिंग रिमार्क्स के फॉर्म में, और कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज को हम पढ़ेंगे और किस तरीके से अपना आंसर स्टाइल बनाएंगे जो कि एग्जामिनर को इंप्रेस कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्दर कुछ रिकमेंडेड बुक्स एंड मटेरियल्स जो है उसमें कोर कुछ मटेरियल है, जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी क्लास 11th 12th का आप जरूर पढ़िए, रिवीजन जरूर करिए उसका लाइन बाय लाइन। ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। कई बार जब आप मास्टर्स कर लेते हैं, पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, तब तक ये कॉन्सेप्ट्स कई बार इनके ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है, थोड़ा ब्लरी हो जाता है। तो इसको रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है कि आता हुआ चीज गलती से आप मिस्टेक आपसे ना हो इन चीजों में। फर्दर आप देखिए फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसके लिए प्रोफेसर सविंदर सिंह सर की किताब है, और भी किताबें हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी पे बहुत सारी किताबें हैं, प्रोफेसर माजिद हुसैन सर की किताब है मॉडल्स, थियरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, सुदीप्ता अधिकारी की पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। और इस तरीके से जितने भी आप सिलेबस को पढ़ते हैं उसके नीचे आप देखेंगे मेंशन होता है रेफरेंसेस। तो किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी का आप जो सिलेबस है अंडर ग्रेजुएट लेवल का, यूजी कोर्स का, पीजी का नहीं, यूजी कोर्स का सिलेबस, उसको देख लीजिए और उसके नीचे रीडिंग देख लीजिए। आपको हर टॉपिक पे कुछ रीडिंग जरूर पता होना चाहिए। अगर इंटरव्यू में पूछ दे कि बताओ इस टॉपिक से रिलेटेड 3-4 रेफरेंस बताओ, क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ाओगे बच्चों को, तो आपको उन पे किताबें जरूर पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि मैं किसी एक वीडियो में बुक्स एंड ऑथर्स पे भी थोड़ा डिस्कस कर लूंगा, इंपॉर्टेंट बता दूंगा। और गोचिंग लियोंग एक पुरानी किताब है जो कि कब से हम पढ़ रहे हैं, इसको रिवीजन करने के लिए काम आता है। और यूजीसी नेट के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस बुकलेट्स भी आते हैं मार्केट में, आप जिस पब्लिकेशन का चाहें ले सकते हैं। और इन सब के अलावा हमने जो क्रिएट करा है इसी चीज के लिए, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो हमारा वेबसाइट है thegoecolleges.com, जहां पे यूजीसी नेट ज्योग्राफी पेपर 2 का प्योर इंग्लिश में मटेरियल है अवेलेबल, साथ में वीडियो लेक्चर्स है। और एक है बाइलिंगुअल, मतलब मटेरियल जो है वो सेम है इंग्लिश में बट लेक्चर्स हिंदी में है। और ये दोनों कोर्सेज अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से उस पर जा सकते हो, खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। ये बहुत अफोर्डेबल और इफेक्टिव कोर्सेज बनाई गई हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियोज आप देख के क्लासेस की तरह पढ़ सकते हैं और स्टडी मटेरियल सारा डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए भी मटेरियल दे दी गई है। ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। तो ओवरऑल जो होलिस्टिक प्रिपरेशन है उसके लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला चीज है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसको बैलेंस करना है। सो बैलेंस प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यूज दोनों का ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस एग्जाम में। रिविजन नोट्स आपके अपने राइटिंग में लिखी होनी चाहिए। आजकल राइटिंग बहुत कमजोर हो गई है क्योंकि हम हमेशा लैपटॉप या फोन में लगे रहते हैं। तो आप मेक श्योर कि आप रोज लिखिए, लिख के प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यू टेस्ट्स की भी प्रैक्टिस आप रिटन फॉर्म में करिए और कोशिश करिए अपनी थियरी को, एप्लीकेशंस को बैलेंस करने की ज्योग्राफी में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे और ज्यादा वीडियोस बनाऊं तो कुछ कमेंट्स लिख के मुझे बताइए कि और क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप क्लैरिटी चाहते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। और अगला वीडियो में इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम या यूजीसी नेट एग्जाम के लिए अलग से बना के
आपको दूंगा। और इन सब के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करना चाहिए वो है कि फाइनल चेकलिस्ट क्या है आपका एग्जामिनेशन में। तो उसको देखिए कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन, लास्ट माइल प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आप देखिए कि आपका सारा का सारा टॉपिक्स रिवाइज्ड है या नहीं, क्योंकि रिमेंबर टॉपिक्स सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको कोई कह रहा है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप समझिए एक गलत बात है। हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सारे क्वेश्चन सिलेबस में। आप देखेंगे चाहे राजस्थान का एग्जाम लीजिए या हरियाणा का, और इफ यू टेक तमिलनाडु और कर्नाटका और वेस्ट बंगाल, एनी स्टेट एग्जामिनेशन, आप देखेंगे क्वेश्चन वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, राइट। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप इसको अच्छे से करिए, और आंसर राइटिंग के लिए भी हमारे यहाँ पे कोर्स है वेबसाइट पे, लेकिन वो यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए है। बट आंसर राइटिंग का स्टैंडर्ड आप समझ लेंगे तो आप लिख सकते हैं वो कोर्स लेके भी। एमसीक्यूज को प्रॉपर्ली सॉल्व करिए, और खूब सारे एमसीक्यूज टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक पे एमसीक्यूज आप सॉल्व करके रखिए। रिवीजन नोट्स रेडी रखिए, और मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि आपको एग्जामिनेशन अगर नेक्स्ट ईयर है तो ये टाइम आपके लिए रुकेगा नहीं। So remember, you have to prepare every day for this examination, और mentally you have to be fit so that अगर आपको questions कोई trouble भी होता है, एक दो question नहीं भी आते हैं, तो rest of the question आप अच्छे से करिए। अगर एक question गलत भी होता है तो इससे परेशान नहीं होके you can focus on this examination। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है इस एग्जाम की तैयारी के लिए। So now I hope that you understood how to go about preparation for this particular examination for assistant professorship. So across India, at numerous universities, you'll see vacancies coming up. So be vigilant, be aware, and follow these strategies which have been discussed in this video. So best wishes, take care.